Okay, so welcome all of you guys in today's lecture, and I hope that you are revising all your rapid revision lectures very nicely. मैंने already supply chapter का, registration chapter का, time of supply का सारा lectures अपने channel में upload कर दिया है और आप लोग इसका लुफ्त उठा रहे हो. All my dear CMA Final IDT students, you have to do it. You have to do it. इस बार नहीं तो कभी नहीं, because this three letters CMA has to be added before your name in this coming term only. You have to take this challenge, and this is a mission I'm giving you, and I'm sure that you are going to do very good in your results. आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, and that is all you are expected to do it. Revision time है, so let's not waste time. Today we are going to take the topic value of supply. आज का topic होने वाला है value of supply, sir. Now let me tell you, this chapter is very important in your examinations. You can expect decent 6 to 8 marks question from this chapter, and this is a practical chapter. This is a practical chapter, and practical questions can come from this chapter. Value of supply. Section 7, scope of supply. Section 8, composite and mixed supply. Section 9, levy collection of GST. Section 10, composition scheme. Section 11, exemptions. Section 12, time of supply of goods. Section 13, time of supply of services. Section 14, time of supply of in case of change in rate of tax. Section number 15, value of supply. Section number 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई कि किस वैल्यू पे, क्या वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ऑन विच वैल्यू जीएसटी विल बी चार्जेबल इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ सप्लाई. Sir, we had studied in section subsection 9.1. 9 subsection 1 has provided that CGST will be levied on intrastate supply of goods or services except alcoholic liquor for human consumption on a value determined under section 15. Now this is the value that is on which GST will be chargeable. Section 15 is divided into 5 subsections. Very important. Section 15 subsection 1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5. Now 15.1, 2, 3 is together and 15.4 and 15.5 is separate. That is basically valuation rules. 15 subsection 1 talks about the value of supply will be what? The transaction value. The transaction value is the value of supply. That is the actual price paid or payable for the supply of goods and services between unrelated person, where price is the sole consideration. जहां price sole consideration है और supply और recipient क्या है? Unrelated है sir. Sir, what if related? Then transaction value cannot be taken. Sir, what if price is not the sole consideration? I am also giving some more other thing other than price. मतलब some additional consideration is involved, non-monetary consideration is involved, some exchange is involved. In that situation, transaction value cannot be adopted because price is compromised. You see, because it's very simple. अगर मैं 100 रुपया में कोई आइटम आपको बेच रहा हूं तो मेरे को तो 100 रुपया प्राइस लेना चाहिए ना. मैं बोल रहा हूं नहीं मैं तो 100 रुपीज में आइटम बेचा और मैंने आपसे और भी कुछ लिया, तो दैट कैनॉट बी टेकन एज ट्रांजैक्शन वैल्यू. 100 रुपीज कैनॉट बी टेकन एज ट्रांजैक्शन वैल्यू. बेसिकली गाइस, जीएसटी में सिंपल कॉन्सेप्ट है, वॉट एवर आई एम सप्लाइंग, whatever I am supplying and against which whatever I am receiving from you, whether it be money or non-monetary, GST will be applicable on the entire value. Now when I talk about transaction value, it always talks about money terms, it always talks about monetary terms. ये हमेशा monetary या money terms के ऊपर बात करेगा. तो money terms के ऊपर जब हम बात करेंगे तो transaction value will be considered if the price is the sole consideration. So two conditions, price should be the sole consideration and supplier and recipient should be unrelated, right guys? तो फिर आप value supply transaction value ले सकते हो, ठीक है. फिर बहुत सारे बेटा वैल्यूएशन रूल्स है, इसके ऊपर भी हम आज रिवीजन करेंगे. रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 ए. दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम 15 सबसेक्शन 4. ठीक है, एक बार मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं. अभी जो मैंने आपको बताया होता 15.1. 15.2 क्या था? स्पेसिफिक इंक्लूजन्स. इफ यू रिमेंबर 15.2a, 15.2b, 15.2c, 15.2d, 15.2e, there's 5 specific inclusions in the transaction value which will be always be included over and above the price. जैसे फ्रेट हो गया, incidental expense, packing charges, you know, tax, duty, cess, fee, सब्सिडी गिवन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंक्लूड हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में. नेक्स्ट होता है डिस्काउंट. डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई. डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई. कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा. ये सब अपने 15.3 में बात करेंगे. 15.4 याद होगा, if you cannot take the transaction value, then you have to adopt valuation rules, and this is valuation rule. Rule number 27, 28, 29, 30, 31, 31a. And there is valuation rules of notified supplies, that in 15 subsection 5. 15 subsection 5 will talk about overriding section 15.1 and 15.4. It overrides and it provides that some kinds of notified supplies के ऊपर valuation rules are fixed, like life insurance business, right? Money exchanging business, right? And
क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मनी एक्सचेंजिंग बिजनेस, और भी बहुत सारे सप्लाईज है, वाउचर्स, टोकन्स, इनके वैल्यूएशन रूल्स क्या है, इनके वैल्यूएशन रूल्स फिक्स्ड है। तो अपने को रूल 32 चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? रूल नंबर 32। फॉरेन करेंसी, एयर ट्रैवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड हैंड गुड्स, टोकन वाउचर, notified supply, pure agent, and all this kind of stuffs we are going to study in this particular chapter. तो ये सब ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, ये एक रिवीजन क्लास है, तो फटाफट एक बार देख लो, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं। वैल्यू सप्लाई सेक्शन नंबर 15। 15 1 is actual transaction value where the value supply should be between, where the supply should be between unrelated person and price is the sole consideration। 15 2 में स्पेसिफिक इंक्लूजन्स है, 15 3 में एक्सक्लूजन्स है, दैट इज डिस्काउंट। 15 4 में नोटिफाइड वैल्यूएशन रूल्स है, दैट इज रूल 27 to 31 वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, एंड 15 5 में वैल्यूएशन मेथड्स है फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। वैल्यूएशन, what do you mean by transaction value? Actual price paid or payable. Always understand कि transaction value can never be notional. Transaction value is always actual. It is the actual transaction value paid or payable for supply. And always remember one more thing कि valuation parameters for goods and services are same. But time of supply का parameter अलग अलग था। Section 12 अलग है, 13 अलग है। But 15 और 16 ऐसा नहीं कि 15 valuation of goods है, 16 valuation of services है। No. Parameters of both are same. Parameters of valuation both are same for value supply, but time of supply के लिए अलग अलग है। ठीक है, सप्लाई अनरिलेटेड के बीच में होना चाहिए एंड प्राइस होल होना चाहिए। ठीक है सर, व्हाट आर द स्पेसिफिक इंक्लूजन्स इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू? आई होप गाइज आपको मजा आ रहा है रिवीजन करके, फटाफट फटाफट कट 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 करके रिवीजन भी हो जा रहा है। और मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको कहीं पे भी लगा कि मैं इस जोड़ फटाफट बोल रहा हूं तो प्लीज आपके पास ऑप्शन है रिवाइंड फॉरवर्ड का, डू इट, एक्सरसाइज इट। ठीक है, आप मेरे वीडियो को पॉज करो और फटाफट रिवाइंड करके जाके फिर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू सर, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। 15 subsection 2 clause A, all the taxes, all the duties, all the cesses, all the fees levied under any law other than GST। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा डिबेटेबल इशू था। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फी लेविड अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी। सर व्हाट अबाउट टीसीएस? अब टीसीएस एक पॉइंट आ गया। इनकम टैक्स एक्ट में अ सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर। क्या इस टीसीएस पे भी जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, because TCS is not a tax under GST law. TCS is tax under income tax law. So there was a confusion in the law कि whether TCS, मान लो 100 रुपीज का गुड्स है, 10 रुपीज का टीसीएस है, तो 110 पे हम जीएसटी लगाएंगे कि 100 पे जीएसटी लगाएंगे? गवर्नमेंट बोलते हैं 100 पे लगाएंगे, बिकॉज टीसीएस इज नॉट अ टैक्स। गवर्नमेंट क्लैरिफाइज, सीबीएसई क्लैरिफाइज दैट टीसीएस इज नॉट अ टैक्स, इट इज एन इंटरिम लेवी। It is an interim levy which is imposed for temporary purpose, but इसका क्रेडिट सेलर को मिल जाता है। So this is not the nature of tax. तो टैक्स का नेचर नहीं होगा, लेकिन वही म्युनिसिपल टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, these all are levied under any law other than GST. If it gets recovered from the buyer, this will be definitely included in the transaction value. लास्ट है 15, नेक्स्ट है 15 टू बी थर्ड पार्टी पेमेंट। मैंने इवेंट मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल है। एनी अमाउंट इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, आई रिपीट गाइस, एनी अमाउंट इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर वेयर द सप्लायर वाज लायबल टू पे the value to the third party vendor. If that is not included in the price, then that price will definitely, that payment will be included in the transaction value. Say for example, supplier का contract था recipient से 10 lakh rupees का, I have made, recipient has made a payment of 1 lakh to the third party on behalf of the supplier. तो sir, in that situation, this 1 lakh will also be included in the value of supply if not included. मतलब gross value पे GST charge किया जाएगा. Next है 15(2)(c, that is incidental expenses. Any incidental expenses charged by the supplier and any amount charged for anything done by the supplier at the time of supply or before delivery. Any incidental expenses जो कि supplier ने charge किया है, और कोई भी amount for anything done, मतलब guys कोई भी, जैसे पैकिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्री इंस्टॉलेशन, बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी चीज मैंने आपको चार्ज किया है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेमेंट चार्जेस हो गया, बहुत सारी चीज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। 15(2)(d, जैसे जैसे याद करो, मैंने अभी भी गाइस आपके साथ डिस्कस किया था, आई मीन लास्ट वीडियो में, टाइम ऑफ सप्लाई, that is 12 subsection 6, enhancement in the value of supply by the value of supply for interest penalty delayed payment। तो वहां पे वो वैल्यू में वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट वैल्यू में इंक्लूड होगा, ये बोलता है 15(2)(d। ठीक है, तो 15(2)(d) के हिसाब से इट विल बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सिडी, एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को इस पॉइंट से लेकर। सर सब्सिडी जो होता है,
सब्सिडी में देखो दो तरह के सब्सिडीज होते हैं, एक होता है जनरल सब्सिडीज और एक होता है प्राइस लिंक्ड सब्सिडीज. व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइस लिंक्ड सब्सिडीज, आई टॉक अबाउट कि दैट इज बेसिकली गिवन टू यू ऑन द सेल, ऑन द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, right? So if I am giving you a particular product and government is giving a subsidy to me on that particular product का supply, यानी I am supplying at a lower price and government is giving me the balance money by way of a subsidy, because मैंने lower price को सफर दिया क्योंकि government is giving me a subsidy on this. So in that situation, the subsidy which I am receiving from the government will not be included in the value supply, but this subsidy which I am receiving from any other person other than government, this will be included in the value supply. Example, 50 rupees का notebook है, I am supplying at 30 rupees, 20 rupees I am getting as a subsidy from the government. The transaction value, the value supply will be 30, not 50. But if this 20 rupees would have been given by subsidy, would have been given by any NGO or any private organization, then my value of supply would have been taken as 50 rupees. Why? Because subsidy linked to price provided by person other than government will be included in the value of supply. मतलब आप lower price कब लोगे? जब government की subsidy है, और आप gross value कब लोगे? जब non government की subsidy है. ठीक है सर. TCS would not be included in the value of supply as it is an interim levy, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, and it is not having the character of tax, that is it has been clarified by the CBIC circular. एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस और एनी अदर टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, ये सब आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा सर. पेमेंट टू थर्ड पार्टी का बात कर चुके, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का बात कर चुके सर. ये नोट्स हमें मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेना, वही मिलेगा. इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2D. प्राइस लिंक सब्सिडी सब अपने बात कर चुके. नेक्स्ट है डिस्काउंट. डिस्काउंट दो तरह का होता है. वन, at the time of supply, discount given at the time of supply or before the supply or at the time of invoice. In that situation, discount will be reduced from the value of supply because it is recorded in the invoice. But what if discount is given after the supply? Then you need to fulfill some conditions, that is pre-existing agreement should be there between the supplier and the recipient, that discount will be provided at the time of supply. There should be an agreement. Dusra, that discount should be specifically linked to a particular invoice. That discount will be given in which invoice. And third, obviously sir, if I have, since it is a post supply discount, guys, you have to understand, these are never given in invoice. तो invoice starting में full value पे issue किया जाता है. say for example 10,000 plus GST, 10,000 plus 18% GST पे मैंने invoice raise किया, right? 11,800 मैंने charge किया. तो recipient would have claimed ITC of 1800 and I have paid output tax 1800. Now after 2 months I am actually giving the discount of 10%, that is I am giving a discount of 1000 rupees plus GST impact 18% के हिसाब से यहाँ पर 180. तो दिस 1180 का आई विल हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. तो एम आई अलाउड टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये 180 रुपीज का मेरा क्या होगा सप्लायर के लिए? 180 रुपीज सप्लायर के लिए क्या होगा? उसकी आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी. तो कब होगा? जब आईटीसी भी रेसिपिएंट का रिड्यूस होगा बाय 180. I hope you understood. To equal and opposite, every action has an equal opposite reaction. If supplier reduces the output tax, ITC of the recipient should also be reversed. Very important था ये. तो डिस्काउंट को बहुत ध्यान से जज करना. केस स्टडीज कम्स बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड यू विल बी गिवन कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बताओ आपको डिस्काउंट अलाउड है कि नहीं है, डिस्काउंट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड है कि नहीं है. तो आपसे यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस 3 क्वेश्चंस. नंबर 1, was there any existing agreement? Sometimes question itself says ki I had supplied to you, that time there were no terms, but after 6 months suddenly a discount policy came. No, this condition has to be fulfilled. There should be a pre-existing agreement. If there is no pre-existing agreement, discount is not allowed to be reduced from the value of supply. मतलब सर आप discount दे सकते हो commercially, but what will happen, guys, what will happen? Supplier will not be able to reduce his output tax, because what's happening when I'm giving you a discount, my output tax will be reduced na, and when my output tax will be reduced, that is a benefit for the supplier. So government will only allow if 15(3)(b का तीनों condition is fulfilled, else it will not allow. ठीक है ना? जैसे आप देखो, there are many discount like buy more save more offers, staggered discount to the customer, buy 2 get 1 free, buy 5 get 3 free या get 2 free. शॉपिंग मॉल में आप जाते हो तो ये सब आपको जनरली मिलता है. तो यू बाई मोर, यू सेव मोर. वॉल्यूम डिस्काउंट कहते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? वॉल्यूम डिस्काउंट. तो क्या ये डिस्काउंट
वैल्यू सप्लाई में से माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, बिकॉज दीज आर द डिस्काउंट विच आर डेफिनेटली गिवन यू एट द टाइम ऑफ सप्लाई. दिस इज नॉट अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं होता है. एंड दूसरा ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वेरी सिंपल है. आज आप मेरे को बताइए, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है. मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर को थोड़ी ना इतना सेल कर सकती है. उनके स्टॉकिस्ट होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. नाउ दे गिव इंसेंटिव्स. They give incentives to the stockist कि if you sell more than 1000 pieces, more than 10,000 pieces, I'll give you year end discount. But if you, तो today we have agreed, beginning of the year मैं agree कर गया कि year end तक अगर तुम 1000 pieces बेच देते हो इस particular product का, तो हम तुमको year end पे 10% discount देगा. So this is what? This is periodic discount. This is year ending discount. These are never given in the invoice itself. When manufacturer is selling to the distributor, he will not give it in the invoice. He will give after you have achieved this 1000 pieces का volume, then you will get the discount. तब यहाँ पर क्या होगा? तब these invoice, these discount are always given through credit notes. Credit notes के through ये discount दिया जाता है. अब ये credit note क्या होता है? ये I hope you know this, that the value supply is actually getting reduced. Previously it was higher, now it is getting reduced. That is why you are giving them a credit note. Very important, secondary discount, revaluation is done. Discount which was not known at the time of supply, there was no existing agreement, and after that I'm giving you a discount. No, it will not be allowed to be reduced from the value supply. Now please be very careful. Sir, I am never asking you that you cannot give discount. I am just telling you that discount cannot be allowed to reduce from the value supply for just the purpose of calculating GST. GST कैलकुलेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप GST कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो डिस्काउंट माइनस करना है कि नहीं करना है. जबकि आप आराम से whatever credit note you want to issue, you can issue. You can issue commercial credit note by the supplier even if the condition has not been satisfied. I hope you understood. Giving a credit note, giving a discount is absolutely your discretion. Supplier's discretion. Now, whether supplier will take that impact in his GST return or not, that is a separate question which has to be evaluated, and for that, 15 subsection 3 clause B has to be satisfied. Guys, I hope you are understanding each and everything. I'm giving my आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं अपना 100-200% एफर्ट दे रहा हूँ कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का. लेट मी टेल यू. बट इसके बाद भी आप लोग को नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आई थिंक यू हैव टू एक बार रीड योर मटेरियल फ्रॉम विच एवर फैकल्टी, विच एवर यू नो, जिनसे भी आपने क्लासेस लिया उनका एक बार फिर से क्लासेस देखिए, बुक्स पढ़िए और फिर से आप ये रिवीजन लेक्चर देखिएगा सर. ओके, so this was 15.3. Now comes valuation rules. Valuation rules का काम कब आया? When you cannot take transaction value, because in all situation it's not possible कि supplier and recipient are always unrelated. They can be related. Example अगर मैं आपको दूं, employer related है, दूसरा head office branch related है, कंपनी का दूसरा कंपनी में कंट्रोल है, they are related. They are also supplying to each other. If you remember, schedule 1, para 2, supply between related distinct person even if without consideration it is deemed to be supply. Sir, वैल्यू कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे आप. डिस्टिंक्ट पर्सन वैल्यू कैसे लेंगे? कंसिडरेशन है ही नहीं, ऐसे लेंगे आप. 15 सबसेक्शन 4 के हिसाब से लेंगे आप. तो 15.4, if value supply cannot be determined under 15.1, then valuation rule under 27 to 31 shall apply. तो सर क्या होगा? where transaction value cannot be determined, supply between related persons, supply without consideration. मतलब what are the possible cases where section 15.4 is applicable? Where transaction value cannot be determined. आप transaction value determine नहीं कर सकते, तभी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे. रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते. विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है और कोई कंसिडरेशन जो है जो डिटर्मिनेबल ही नहीं है, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते. तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको यही वाला मेथड में जाना पड़ेगा, दैट इज 15.4. अब इसका भी देखो, क्या मस्त चार्ट है ना? अरे बोलो बोलो, चार्ट अच्छा है ना? नहीं सर, आप बोलते जाइए बस, हमें कुछ बोलना नहीं, आज संडे है. क्या बोलेगा? Valuation rules. Valuation rules if TV is not applicable. Valuation rules if TV is not applicable. कुछ कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये रकम चलबे नहीं चलबे. Valuation rules if TV not applicable. Sir, valuation rules if TV cannot be applicable. Rule number 27.
स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या बोलता है? वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, जब कंसिडरेशन में 100% मनी नहीं है, 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, इफ देयर इज नो 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन, इफ कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तब क्या करना है सर? तब तो 15(1) ले नहीं सकते, तब आपको ओएमवी लेना पड़ेगा, ओपन मार्केट वैल्यू। एंड इफ ओएमवी इज आल्सो नॉट अवेलेबल, देन मनी वैल्यू प्लस मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का मनी वैल्यू। आई नीड वैल्यू इन कंसिडरेशन मनी प्लस एफएमवी ऑफ द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। जब आप रूल 27 अप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन में ये जाना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन, जब ये तीनों दोनों ही नहीं जा सकते तो एलकेक्यू। एलकेक्यू मतलब लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सिमिलर गुड्स, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, आइडेंटिकली गुड्स सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रेप्यूटेशन, फंडामेंटल सब कुछ सेम है। इफ एवरीथिंग इज नॉट ए बी सी, ए क्या था? ओएमवी, दो क्या था? मनी वैल्यू प्लस एफएमवी ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, तीसरा क्या था? लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इफ ऑल थ्री पैरामीटर्स आर नॉट एप्लीकेबल और कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल, देन यू हैव टू टेक रूल 30 एंड 31। रूल 30 क्या बोलता है? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड रूल 31 बोलता है बेस्ट जजमेंट मेथड। यू हैव टू टेक द वैल्यूएशन, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन इन कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन सेक्शन 15 एंड द वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है, तो रूल 30 एंड 31 आर एप्लीकेबल इन ऑर्डर इन द फॉलोइंग केसेस। इफ वैल्यू, देखो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि रूल 27 अल्टीमेटली तीनों का, मैंने आपको याद दिला देता हूं, रूल 27 इफ नॉट बीन एप्लीकेबल 30 31, 28 से भी 30 31 एंड 29 से भी 30 31। 30 इज 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड 31 इज वैल्यूएशन मेथड inconsistent with transaction value as mentioned in section 15 and its valuation rules. Rule number 28, देखो सब कुछ सेम लग रहा है आपको, यहां पे भी ओपन मार्केट वैल्यू होगा। अब ये ओपन मार्केट वैल्यू क्या? सिंपल है सर, ओपन मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू व्हिच एन इंडिपेंडेंट सप्लायर वुड हैव सप्लाइड दिस सेम like kind quality and goods to a unrelated party where price is the sole consideration। मतलब अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, राइट, मैं आपको रिलेटेड पर्सन हूं, आप मेरे, और आप मेरे रिलेटेड पर्सन हो, और यहाँ पे वैल्यूएशन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नहीं लग सकता। तो एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, same type of goods an independent supplier is supplying to an unrelated customer, तो what is that value? What is that value? That value is open market value। तो आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा ओपन मार्केट वैल्यू, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा कि यस दिस इज एक्चुअली द ओपन मार्केट वैल्यू एंड दैट हैज टू बी टेकन। तो ओपन मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज द प्रायोरिटी इन ऑल सिचुएशन। आप देखो रूल 27 में सबसे पहले ओएमवी लेना पड़ेगा, अगर ओएमवी नहीं दिया है तो फिर आप मनी वैल्यू प्लस एफएमवी में जाएंगे, अगर वो भी नहीं दिया है तो फिर आप एलकेक्यू में जाएंगे, वो भी नहीं दिया है तो फिर आप रूल 30 एंड देन 31। यू जस्ट कांट स्ट्रेट अवे अप्लाई रूल 30। ठीक है, ओके। रूल 28 अगेन सेम, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस अदर देन एजेंट, क्योंकि गाइस आपको रिमेंबर होगा एजेंट में भी डिस्टिंक्ट पर्सन के थ्रू सप्लाई हो सकता है, बट यहाँ पे एजेंट वाला केस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एजेंट रूल 29 में आएगा। रूल 28 टॉक्स अबाउट सेम ओपन मार्केट वैल्यू, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और अगर दोनों ही नहीं ले सकते हैं तो रूल 30 और 31 को आप उसी ऑर्डर में अप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या हट गया? सेम है रूल 27 जैसा, रूल 28 में क्या हट गया? दिस, क्योंकि ये इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, बिकॉज गाइज इन वन सिचुएशन रूल 27 प्राइस हैज बीन कंसिडर्ड, इन रूल 28 दे हैव गिवन अ सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस वेयर योर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो रूल 28 लगेगा, 27 नहीं लगेगा। ठीक है सर, चाहे वट एवर बी द केस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, alternative option has been given in rule number 28 at the option of the supplier where the supply of goods is made as such by the recipient। मतलब सर सपोज मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, राइट, या मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया, रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, ही हैज फर्दर सप्लाइड दैट गुड्स एज सच, तो वॉट एवर प्राइस ही हैज सप्लाइड एट, इसका 90% आई कैन टेक। ठीक है, as such is very important because that is not being modified, that same good has been passed on to the another customer or any other unrelated person, तो उसका 90% भी मैं ले सकता हूं, it is my option। I may not go for OMV, I may not go for LKQ, I may straight away go for 90%, yes I have the option। And very important, if I am supplying to a distinct person or recipient who is my related person and he is eligible to claim full ITC and I am actually making him, I am actually charging a value from that customer or from that related person or from that distinct person, तो because the recipient is eligible to claim full ITC, government के rule के हिसाब से the OMV
कैन बी टेकन एज द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, यानी जो भी मैंने इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर किया दैट कैन बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू, और उसी पे जीएसटी लग जाएगा। सेम जो आपने 28 में पढ़ा 29 में भी वही है, बस डिफरेंस यही है कि सर यहाँ पे जो रूल 28 को एज ऑप्शन दिया गया है, रूल 29 को भी यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि आप ओएमवी या 90% में से कुछ भी कर सकते हैं। सेम रूल ओपन मार्केट वैल्यू और 90% of the like and quality whether sub goods are intended for the supply to the recipient। सेम अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाएंगे तो yes you can definitely go for rule 30 or rule 31। what is rule 30? rule 30 is 110% of cost of production, cost of acquisition, cost of provision of service। and what is rule 31? Rule 31 is nothing but the residual method or best judgment method by using reasonable means that is inconsistent with section number 15 and its rules। very important, आपको normally 27, 28, 29 उसके बाद आप 30 और 31 फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स they can opt for rule 31 first and then they will go for rule 30। मतलब ऐसा है कि 27, 28, 29 उसके बाद straight away they can go for 31 and then if not they can go for 30। मतलब गुड्स वालों को तो सीरियली फॉलो करना पड़ेगा 30 के बाद 31, बट सर्विस प्रोवाइडर्स को they have an option to opt for rule 31 instead of rule 30। ठीक है, यस सर। तो ये था गाइज अपना क्या बोलते हैं अपने वैल्यूएशन रूल्स इन वेरी वेरी शॉर्ट। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि सर रूल नंबर 27 से जो मेजर डेफिनेशंस निकल के आते हैं वो है ओपन मार्केट वैल्यू का। वो किसका आता है? वो ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशंस निकल के आता है। जैसे कि ओपन मार्केट वैल्यू मींस फुल मनी वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस अंडर जीएसटी लॉ payable by a person to obtain the supply at the time when the supply is being made when it is between unrelated and price is the sole consideration। like kind and quality मतलब क्या है? any other supply made under similar circumstances closely or substantially resembles for characteristics, quality, quantity, functionality, reputation। यानी ये सब पैरामीटर्स में वो गुड्स एकदम रिजेंबल करता है। नेक्स्ट है 15 सबसेक्शन 5 वैल्यूएशन रूल्स फॉर नोटिफाइड सर्विसेज। नाउ बिफोर दैट एक और चीज, रूल 31A में लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का वैल्यू सप्लाई क्या होगा? डीम टू बी 100/128 ऑफ वैल्यू विच इज द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हायर। ठीक है, 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। ठीक है, 100% of the face value of the bet of the amount to be paid to the totalizator that is the organizer, उसका actionable claim की जो वैल्यू होगी वो 100% मानी जाएगी। अब नेक्स्ट अपने आते हैं वैल्यूएशन रूल्स दैट इज सेक्शन 15(5) में। 15(5) क्या बोलता है? कुछ कुछ प्रिस्क्राइब नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ सर्विसेज में वैल्यूएशन मेथड्स अप्लाई होगा एज पर रूल नंबर 32। तो चलिए एक बार अपने देखते हैं कि रूल नंबर 32 में कौन कौन से सर्विसेज है जिसका गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। नाउ गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक पॉइंट है दैट यू प्लीज हैव टू लर्न द सब रूल नंबर। ठीक है, बिकॉज काफी बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको सब रूल नंबर दे देगा कि डिटरमाइन द वैल्यू एज पर दिस रूल, और आपको याद ही नहीं रहेगा कि अरे ये रूल नंबर क्या था, राइट? तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि रूल 32 सब रूल 2 ये है, 32 सब रूल 3, 4, 5 एंड 6 ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद sub rule 2 first। sub rule 1 is simple that valuation rules for notified supplies as mentioned in 15(5) will be determined as per rule number 32। ये sub rule 1 है। अब अपने आते सीधा sub rule 2 में। अब sub rule 2 में 2 clauses है, rule 32 to A, rule 32 to B, because you can see there is one option and there is second option। तो this one option is rule 32 sub rule 2A एंड ऑप्शन 2 मतलब आपके पास दो ऑप्शन, आप कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। जब आप क्लॉज ए में जाते हो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन वेयर यू आर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी टू रूपी और रूपी टू फॉरेन करेंसी, तो एक ही बात है। दूसरा, या फिर आप फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। वेन एवर यू आर एक्सचेंजिंग एनी करेंसी फ्रॉम एन इंडियन रूपी टू अ फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी टू इंडियन रूपी, मतलब अगेन देयर आर टू केसेस, the currency, the foreign currency against which Indian rupee is exchanged, whether SBI का RBI का reference rate is available। if RBI का rate is available, say for example डॉलर है, $1 is equal to 82 rupees, right? और आपने जब कन्वर्ट कराया
आपने जब कन्वर्ट कराया तो आपको 84 में आपका कन्वर्ट हुआ, तो 2 रुपीज इज वर्थ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 84 एंड 82, बिकॉज 82 इज द एक्सचेंज रेट कोटेड बाई आरबीआई, द आरबीआई रेफरेंस रेट, बट एक्चुअली आपको रेट क्या मिला 84, तो 2 रुपीज इज कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर वन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज्ड। बट इफ आरबीआई रेट इज नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा करेंसी से कन्वर्ट हुआ है जिसका आरबीआई रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन 1% of the gross amount of currency exchange, 1% of the gross amount of GACE, 1% of the GACE gross amount of currency exchanged is going to be the value of supply जब आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है। So what about foreign currency to foreign currency? वहां पे तो क्या करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट बोलता है you will convert both the foreign currency into respective RBI reference, taking the RBI reference rate, and you have to कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रूपी, एंड लोअर का जो भी अमाउंट रहेगा उसका 1%। से फॉर एग्जांपल डॉलर भी और येन भी है, डॉलर टू येन कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर को रूपी में ले आओ, येन को रूपी में ले आओ, दोनों का जो लोअर अमाउंट है उसका 1% विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, रूल 32 सब रूल 2 बी क्या था, दिस इज बेसिकली स्लैब बेस्ड, दिस इज व्हाट स्लैब बेस्ड, you have to first of all determine the exchange value. Say for example rupee 10 lakh was exchanged by converting a foreign currency into Indian rupee, तो 10 लाख रुपीस का कन्वर्जन हुआ है, तो 10 लाख रुपीस का अगर कन्वर्जन हुआ है तो आपको स्लैब लगाना पड़ेगा। अप टू 1 लाख का जो कन्वर्जन है उस पर 1% और 250 रुपीज मिनिमम, आई रिपीट 250 रुपीज मिनिमम। सोचो अगर 2 लाख का कन्वर्जन है तो 2 लाख का 1% है, और सॉरी 2 लाख का 1% नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 लाख तक 1% है, तो 1 लाख का 1% हो गया, और 250 विच एवर इज लोअर, 1 लाख का 1% और 250 ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो 1 लाख का 1% जो 1 लाख है, अरे भाई समझ में आया, 1 लाख का 1% जो है ये तो पूरा ही होगा आपका, और 250 तो विच एवर इज हायर हो गया, तो 1000 हो गया हायर, तो 250 इज द मिनिमम। सोचो यहाँ पे, सोचो यहाँ पे 20,000 अगर आप कन्वर्ट करो तो 20,000 का भी 1% लेना है आपको, और 250 तो 250 हायर हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू टेक विच एवर इज हायर। एम आई क्लियर? तो 1% और 250 विच एवर इज हायर। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट 9 लैक्स इंक्रीमेंटल वैल्यू मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, तो 9 लाख के ऊपर आपको 0.5% प्लस 1000 जो अपर अबव से आ रहा अप टू 1 लाख, देन अबव 10 लैक्स, अबव 10 लैक्स पे एक्सेस पे 0.1%, और ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1000 रुपीज प्लस 9 लाख का 0.5% कितना हुआ 4500 रुपीज, तो 4500 प्लस 1000 5500 तो 10 लैक्स तक का ही, ठीक है, और उसके अबव जो रहेगा वो कितना रहेगा 0.1% रहेगा। क्लियर है गाइस? तो ये प्लीज ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट यहां से पूछता है, दे विल आस्क यू ऑल दिस रूल्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। ठीक है सर। देन कम्स वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर, दैट इज रूल 32 सब रूल 3। डोमेस्टिक बुकिंग में बेसिक फेयर का 5% है, इंटरनेशनल बुकिंग में 10% का, आई मीन बेसिक फेयर का 10%। Basic fare means airfare on which commission is payable to the air travel agent. That is, it does not include the other charges and the taxes. That is rule number 32 sub rule 3. Rule number 32 sub rule 3. ठीक है, ये हो गया आपका बुकिंग का पूरा अमाउंट। अब अपने रूल 32 सब रूल 4 नेक्स्ट में देखेंगे, वेयर लाइफ इंश्योरेंस का बात करेगा। रूल 32 सब रूल 5 भी देखेंगे। एक बार आप 6 देख लो, टोकन वाउचर एंड कूपन, इसकी जो वैल्यू होगी, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5000 का टोकन है या वाउचर है और मैं 5000 में उसे बेच रहा हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द मनी वैल्यू दैट दैट टोकन कैन बाय। अगर एक वो वाउचर है, जितना का वो टोकन है, जितना का वो बाई कर सकता है, दैट इज अल्टीमेटली द वैल्यू सप्लाई फॉर दैट कूपन, टोकन या वाउचर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आते हैं, ध्यान से देखना। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। सबसे पहले रिस्क पॉलिसी, ओनली रिस्क पॉलिसी, मतलब you are covering 100% risk. Value shall be determined as per section 15, that is 100% premium, whatever collected from that policy will be considered to be the value of supply. Simple as that. Savings policy, savings policy क्या हुआ? Savings policy is basically investments, some kind of protection is given
in the premium amount on for the policy holder, that is investment amount is allocated, मतलब आपकी जो प्रीमियम है उसका ब्रेकअप किया जाता है. इट्स नॉट ओनली रिस्क पॉलिसी, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. तो वहां पे वैल्यू क्या होगा, the amount of premium minus the investment allocated, the premium allocated for the investment, the net premium will only be considered to be the purpose for valuing purpose. अदर केसेस में क्या होगा, नॉर्मल अदर केसेस में क्या होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप नहीं है तो सर फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज एंड सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर है कि सब्सिक्वेंट ईयर है. एंड सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी जो वन टाइम प्रीमियम पे होता है, उस केस में 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी अमाउंट. ये जो भी अपने बात कर रहे हैं, ये अपने जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है सेकंड हैंड गुड्स, दैट इज मार्जिन स्कीम. सेकंड हैंड गुड्स एप्लीकेबल होता है, आई मीन मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होता है सेकंड हैंड गुड्स में. रूल नंबर 32 सब रूल 5. यहाँ पे 2 पॉइंट आता है. इफ आई एम अ सेकंड हैंड गुड्स का डीलर, इफ आई एम परचेजिंग सेकंड हैंड गुड्स एंड आई एम नॉट taking ITC on that, I can definitely avail this second hand goods ka margin scheme. I can actually calculate GST on the differential amount, that is margin. Margin मतलब selling price minus purchase price. ये जो मेरा margin होगा उस पे मैं GST पे कर दूंगा गवर्नमेंट को अगर मैंने ITC नहीं लिया. बट अगर मैं ITC ले लिया अपने परचेज में, सेकंड हैंड गुड्स डीलर ने ITC ले लिया, तो फिर ये वैल्यूएशन रूल अप्लाई नहीं होगा. देन नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एप्लीकेबल. इंस्टीट्यूट यहां से पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है. रूल नंबर 33, दैट इज प्योर एजेंट. प्योर एजेंट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है बिकॉज गाइस इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लाइफ प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. प्योर एजेंट मींस व्हाट, प्योर मींस प्योर एजेंट. एजेंट तो आपको बताइए प्योर एजेंट मतलब क्या, सर्विस रेसिपिएंट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. Service recipient is actually entering into a contractual agreement with the service provider, where service provider has been authorized to incur all the cost on behalf of the service recipient, and the service provider is not holding any title to the cost or supplies which is procured on behalf of the service recipient. He doesn't use any such for his own personal purpose. He just use it for the purpose of supplying the services to the service recipient, and he also recovers only the actual amount which has been incurred by the supplier as a pure agent on behalf of the service recipient, and he does not recover any profit or additional amount from the service recipient. सिंपल सा बात है, अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, आपको जो खर्चा करना चाहिए था, वट एवर कॉस्ट यू शुड हैव इंकर्ड, आई एम इंकरिंग फ्रॉम ऑन योर बिहाफ एज अ प्योर एजेंट. आई एम नॉट एक्चुअली आई एम नॉट एक्चुअली रिकवरिंग एनी मार्जिन, और मैं आपसे कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहा हूँ उस कॉस्ट पे. जो भी हो रहा है आपसे कॉस्ट टू कॉस्ट में रिकवर कर रहा हूँ, और वो जो कॉस्ट मैं आपसे बिलिंग करूंगा दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 33 बिकॉज आई हैव इंकर्ड दैट एक्सपेंडिचर एज अ प्योर एजेंट. एग्जांपल के तौर पे, if I am a custom agent and I'm paying custom duty on your behalf and I'm recovering that from you, and I'm also recovering my service fee from you, though I will not be calculating GST on that custom duty which I have been reimbursed. तो reimbursements पे basically यहाँ पर value include नहीं किया जाएगा, and that is why उस पे GST नहीं charge किया जाएगा guys. तो this was a simple concept of pure agent. ओके एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था प्योर एजेंट में. सिमिलरली एक सर्कुलर आया हुआ है एयरलाइंस के लिए. Airlines and airport operator. Airport operator is basically levying PCF, passenger service fee, and UDF charges on the customers, but they are collecting it through airlines. Airlines क्या करते हैं? Airlines while supplying the services of transportation of passengers, they collect passenger service fees and user development fees from us, from the customers, and that is basically going to the, again that is being reimbursed to the एयरपोर्ट ऑपरेटर. तो यहाँ पर क्या जीएसटी लगेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द अमाउंट ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ चार्जेस व्हिच इज कलेक्टेड थ्रू द pure agent, that is airlines in this situation. So passengers who is ultimately the ultimate recipient of the PCF and UDF charges, they can also claim the credit, and whatever amount has been collected by the airline, they will straight away reimburse that to the airport operator, and airport operator will be liable to pay GST. Then other rule number 33 के बाद 34, whenever any value of supply is in terms of foreign currency, then foreign currency has to be converted into Indian national rupees. Now if it is a case of supply of goods, वहाँ पर क्या applicable हो जाएगा? Goods के case में applicable rate will be as per the CBIC का rate which is notified under section 14. But services के case में क्या applicable होगा? The rate which is applicable as per GAAP, Universal Generally Accepted Accounting Principles.
Next rule 35, very simple. In any situation, if your value of supply is including taxes, so you will definitely be deemed to include that value. मतलब in case where value inclusive taxes, तो आपको back calculate करना पड़ेगा. Say for example 100 rupees की value है, इसमें अगर inclusive of tax है तो 100 by 118 into 18 you will, this is the way how you will calculate the value of tax. और आपको value supply निकालना है तो 100 by 118 into 100, this is how you will calculate the value of supply. So this is the method when we calculate the value supply inclusive of all the GST rates, that is CGST, SGST, IT, IGST and UTGST. That is rule number 35. तो दिस ब्रिंग्स मी एन एंड ऑफ दिस चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई. आई होप आपको सारी बात समझ में आई और आपको सब कुछ क्लियर हो गया इस चैप्टर से. जो भी कंफ्यूजन्स हो सकता था मैंने पॉसिबली सारा कुछ कवर किया कम से कम टाइम में, सो दैट आपका कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करा सकूं गाइस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो उनको भी कंटेंट मिला और वो भी अच्छे से अपना रिवीजन कर सके. मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली दे शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या मेरे से चाहिए, सो दैट आई कैन डू as much as possible for you, because आपका एग्जामिनेशन राउंड द कॉर्नर एंड आई कांट टेक एनी सिंगल रिस्क. तो जो भी ये पॉसिबल चीज आपको चाहिए गाइस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. Thank you so much. I hope this revision was very, very helpful for you. And please do subscribe my YouTube channel Nikunj Goenka Tax Mentor. And do not forget to press the bell icon button to get all the updates. And also share this with your friends because sharing is caring. आप share करोगे तो और भी ज़्यादा लोग इसका benefit उठा पाएंगे. Thank you so much. Okay, take care. God bless you. See you very soon in the next lecture. Bye bye.